Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's class, we will case presentation. Starting with the biodata of the patient. My patient, 47-year-old male resident of Lahore, married patient from middle class socioeconomic status, presented to us in the OPD with the chief presenting complaint of pain, decreased vision, redness, and photophobia in right eye for 1 week. History of presenting illness, patient presented with the complaint of vision loss in inferior quadrant of right eye on 20th May 2022, along with the history of rotors in the same eye. Visual acuity at that time in right eye was count finger, left eye was 6/6. On examination, the right superior retinal detachment was found. Ocular history, there was the history of retinal surgery in right eye for retinal detachment in superior quadrant. PPV, endolaser and silicone oil were also done in the same eye, along with phaco and diode in right eye. There is no history of glasses, no history of contact lenses, no history of trauma. And systemic history of the patient was also unremarkable. The patient does not have any diabetes, mellitus or hypertension. Ocular examination at presentation, when patient presented to us, visual acuity in right eye was a light perception, left eye 6/6, RAPD positive. There was corneal edema in right eye, and IOP in right eye at that time was 40, left eye 18. CD ratio was 0.4, 0.3, and there were no glaucomatous changes. On consultation with VR, silicone oil removal was planned, and injection mannitol, 50 mg Ibistat, along with topical Codorzil, Alprazolam, Deximox, and oral AZM started to settle the acute episode. After 1 month, the pain had settled, RAPD was still positive, and the patient in right eye had fixed dilated pupil, extraocular movements were full, and confrontation test was normal bilaterally. IOP in right eye had reduced to 16 now. On slit lamp examination of right eye was pseudophakic. There were NBIs along with atropion UV. AC was quiet. There were no AC cells of flare. On gonioscopy, no neovascularization and angle was seen. CD ratio had increased to 0.6 now. Left eye was 0.3 still, and in right eye CD ratio was 0.6. There were laser marks on the periphery and cryo marks inferior and superior to the disc. Left eye was unremarkable on examination. This picture here shows the right eye. As you can see, the pupil is dilated, fixed dilated pupil without any mydriatic eye drops, and you can see the IOL. And we tried to capture these NVIs, and which you can see, the picture is not very clear. Here is another picture showing NVIs. As you can see here, these are the NVIs. Another angle. This is the photograph of the patient. The retina was flat, but the CD ratio cannot be appreciated very well here. Another picture, and this is the picture of cryo marks in the patient. Treatment plan. Patient is currently undergoing pan-retinal photocoagulation to treat ischemia. Mainstay of treatment is to treat retinal ischemia. Anti-VEGF in case ischemia does not settle with PRP, and topical Codorzil BD are given to the patient to control IOP. The diagnosis of neovascular glaucoma was made in this patient. Literature review based on European Glaucoma Society guidelines and guidelines for neovascular glaucoma in China. Early detection of retinal ischemia and treatment of ischemia in time is most essential and critical management, which minimizes the progression of subsequent neovascularization process. Another study shows that IV Eplibircept 2 mg on 1st day, 4th day, and 8th day, and then every 8 weeks or 52 weeks may be effective treatment for first and second stage of neovascular glaucoma, causing rapid and sustained regression of neovascularization on iris and NBAs and well-controlled IOP. It's effect lasts for 6 weeks, but penetration distance limits its effect on neovessels on iridocorneal angle. So another new drug was introduced, brolucizumab, which has lightest molar mass, enabling higher delivery to retinal tissues. Another study, Elif et al. Reported that bevacizumab given in 6 eyes, 3 eyes with peripheral anterior syneek and 3 eyes without peripheral
peripheral anterior synex. The eyes without peripheral anterior synex showed good result, when those with synex patient had to further treated with cyclophotocoagulation. Yet the tool reported IV bevacizumab in 6 eyes. Again, those with peripheral anterior synex at the time of presentation subsequently required glaucoma surgery to control IOP, while those without peripheral anterior synex required only topical medication to control the IOP. These studies show that the earlier the patient presents with less complication, the better the prognosis is. And once the anterior synex and further complications develop, the prognosis worsens. Eyes with neovascular glaucoma and open angle have delayed requirement for glaucoma drainage intervention by at least 6 months when compared with neovascular glaucoma and closed angle. Thank you. Once you prepare a case, you must examine fully dilated position में और अपनी findings जो है वो mention करें. पेपर के ऊपर इतना rely नहीं करना. You can take it advantage उसका ले सकते हैं, but not rely on your own findings. क्योंकि जो long case आपका present होगा, जब भाई आप part 2 के लिए जाएंगे तो उसमें यही होगा कि आपने इस patient के ऊपर क्या देखा, ठीक है. उसको examiner जो है वो पहले देख चुका होता है सर. तो आपकी findings अगर कोई उससे हटती है तो एग्जामिनर्स नोज के इसने एग्जामिन नहीं किया या इसने प्रॉपर एग्जामिन नहीं किया तो इसका सर अगर जैसे हमने हिस्ट्री अगर वो उसके पेपर्स में कोई चीज़ है तो उसको हिस्ट्री में या वो पार्ट में जो हम क्या कहाँ इंक्लूड करेंगे, एग्जामिनेशन वाला पार्ट हो उसके बाद बताएंगे हमारे एग्जामिनेशन में क्या होता है उसको थोड़ा हिस्ट्री से परटिनेंट चीज़ें हैं वो हिस्ट्री में बताएंगे, ठीक है ना. अगर आपके पेपर्स में हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप हिस्ट्री में मेंशन करें, और जहाँ आपने एग्जामिनेशन की बात करनी है फिर आपने एग्जामिनेशन फिर आपने ऑन स्पॉट जो आपको मालूम चीज़ें जो आपने देखा है वो देखा है ना, ठीक है. आप रेफरेंस दे सकते हैं कि प्रीवियसली ऐसा था, बट एट प्रेजेंट ये कंडीशन है. क्योंकि लॉन्ग केस के ऊपर हमेशा यही होता है कि व्हाट इज इन दिस केस, ठीक है. आपका नॉलेज बड़ा होता है, सारा कुछ पता होता है, ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन इस पेशेंट में उनमें से क्या चीज़ नेक्स्ट स्लाइड. सिस्टमिक हिस्ट्री अनरिमार्केबल में क्या ऑपरेशनल में क्या सिस्टमिक हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर उसकी कंप्लीट हाइपरटेंशन की हिस्ट्री, डायबिटीज की हिस्ट्री, कोई थायराइड इशू तो नहीं है, कोई कार्डिक इशू, एस्थमा, स्ट्रोक की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें. तो इसको थोड़ा सा मेंशन ज़रूर करना है एटलीस्ट व्हाइल टॉकिंग, ठीक है. मेंशन इस पर अगर नहीं किया लेकिन व्हाइल टॉकिंग आप एक ब्रीफली थोड़ा सा बताएंगे कि ये सिस्टम व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमिक हिस्ट्री. नेक्स्ट. अच्छा, जब प्रेजेंटेशन हुई थी तो कॉर्नियल एडिमा वाज देयर, आपने देखा जब हमें उस टाइम सेटल हो गया थे उससे पिछले कॉल at first presentation जी सर. he had corneal edema, no glaucomatous changes seen. ये glaucomatous changes में और क्या आपने CD रेशियो तो मेंशन कर दिए, और glaucomatous changes में क्या आप मेंशन करना चाहिए? So visual fields इसमें normal field. देखिए, this is examination. Visual field examination में नहीं आएगा, वो investigate जब आप करेंगे उसमें examination में no glaucomatous changes, तो आपने CD रेशियो का तो जिक्र कर दिया, उसके अलावा उसमें क्या मेंशन करना है? सर डेटालाइजेशन ऑफ वेसल्स वो नहीं थी, तो बेरेटिंग साइन वो नेगेटिव था, और बाकी सर CD रेशियो और तो ये चीज़ें मेंशन कर दी, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपको ओवरव्यू एक दे देंगे कि एग्जामिनर को बाकी सारी चीज़ें पता है. यू आर ए स्टूडेंट, यू आर अ कैंडिडेट, आपने हर चीज़ अपने एग्जामिनर को बतानी है कि ये करना था और ये इसमें एज्यूम नहीं करनी हो सकती. डेफिनेटली न्यूवास्कुलर ग्लाइकोमा का पेशेंट है, उसमें अगर
first point is that the topic of presentation should be very attractive, fascinating and catchy. अब ये कोई टॉपिक है केस प्रेजेंटेशन, दिस इज नो टॉपिक। मैं जो कोई होते हैं ना अच्छा जिसका दिमाग काम कर रहा हो वो टॉपिक बनाता है, वी केयर वेयर द अदर्स डोंट डेयर, ठीक है। सो ऐसी चीज़ जो कि लोगों को सारी ज़िंदगी याद है, ये पहला इम्प्रेशन होता है कि इस प्रेजेंटर ने कोई अपना दिमाग खर्च किया है कि नहीं किया। आप जब कोई आर्टिकल लिखते हैं उसमें भी टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो कि इतना इंटरेस्टिंग लगे कि अगला कहेगा यार मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ। इतना ये ब्लैंड सा बोरिंग जो है ना, ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरी बात ये है कि किसी सीनियर को आप चेक करा दिया, लॉट ऑफ मिस्टेक्स, ये लेज़र के स्पेलिंग LAZER पे नई टर्मिनोलॉजी आई है, पहले तो LASER होता था, अब ये Z कब से हो गया। सो स्पेलिंग मिस्टेक कोई अपने कुलीग को बंदा दिखा देता है कि ये क्या मेरी प्रेजेंटेशन है, इसको ज़रा एक दफ़ा देख लें, सीनियर से आप गाइडेंस ले लेते हैं। तो मैं तो कुछ समझ नहीं पाया उनके किस तरह की प्रेजेंटेशन। इसी न्यूवैस्कुलर ग्लोकोमा की प्रेजेंटेशन में आपने गोनियोस्कोपी ली एग्जामिनेशन में, वही ऑकुलर एग्जामिनेशन एट प्रेजेंटेशन। ओके, सो न्यूवैस्कुलर ग्लोकोमा की पहले तो प्रेजेंटेशन में, बट जो टॉपिक आप डिस्कस करते हैं ना उसको डिटेल से डिस्कस करना है। केस आपने प्रेजेंट कर लिया, हमने ये किया, ओके, देन व्हाट अबाउट न्यूवैस्कुलर ग्लोकोमा। लिटरेचर रिव्यू में आप बताते हैं कि जी न्यूवैस्कुलर ग्लोकोमा किस वजह से होता है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ न्यूवैस्कुलर और कोई क्रॉनिक इंफ्लेमेटरी प्रोसेस अगर चल रहा है, क्रॉनिक यूवेइटिस है, उसको कॉज हो सकता है। और कैरोटिड इनसफिशिएंसी, हाइपोक्सिया जब भी होगा न्यूवैस्कुलर। ओके, सो व्हाट आर द साइंस न्यूवैस्कुलर ग्लोकोमा में आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं? So न्यूवैस्कुलर ग्लोकोमा में starting from the anterior chamber से सबसे पहले हमें आइरिस पे न्यूवैस्कुलराइजेशन और आइरिस reduces IVTs नजर Okay, so neovascularization at iris is known as reduces IVTs Robius iris or NVI, और अगर एंगल में हो तो उसको न्यूवैस्कुलराइजेशन ऑन एंगल NVAs। एंगल। सो पहले कहाँ पे न्यूवैस्कुलाइजेशन स्टार्ट होती है? पहले आइरिस के प्यूपिलरी बॉर्डर पे शुरू होती है, फिर वो स्प्रेड करती है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आइरिस के प्यूपिलरी बॉर्डर पे नहीं है तो एंगल में नहीं हो सकती। सो यू हैव टू डू गोनियोस्कोपी इवन इफ देयर इज नो न्यूवैस्कुलाइजेशन एट द आइरिस बॉर्डर। ओके, सो आइरिस न्यूवैस्कुलाइजेशन एक तो आपको ऑब्वियस हो जाती, नज़र आ जाती है, और क्या तरीका है उसको आइडेंटिफाई करने का अगर नज़र नहीं आती? वो और कोई तरीका? न्यू वेसल्स एट आइरिस या एंगल देखने के लिए कोई तरीका है? फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी कर सकते हैं, उसमें से नीचे सो एंटीरियर सेगमेंट में फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी की जा सकती है। सो व्हाट इज क्रीपिंग एंगल क्लोजर? Not necessarily in न्यूवैस्कुलर ग्लोकोमा, किसी भी क्रॉनिक केस में जिसमें एंटीरियर साइनिकिया बन रहे हैं, क्रीपिंग एंगल ग्लोकोमा। सो जो भी डिजीज़ है उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमने डिस्कस करना है। क्या डिस्कस किया, कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो न्यूवैस्कुलर ग्लोकोमा की तरह प्रेजेंट कर सकती हैं? व्हाट इज़ द लिस्ट ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस? केस आता है वो तो नहीं कहता मैं न्यूवैस्कुलर ग्लोकोमा हूँ,
आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या क्या हो सकता है, फिर अकॉर्डिंगली आपने सो व्हाट इज डीडी ऑफ न्यूवैस्कुलर? पेशेंट आता है, इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर है, कॉर्नियल एडिमा है, सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? ओके, किस यूवियाइटिस में इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज होता है? तो कोई नाम है? पोस्नर श्लॉसमेंट सिंड्रोम, इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज होता है। और ओके, और एंगल ग्लाकोमा में एक्यूट राइज ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर। तो जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज्ड है वो सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं, और उन सारों को आपने 1 by 1 एक्सक्लूड करना है। ठीक है, सो आप यूनियोस्कोपी करेंगे तो पता चलेगा एंगल ओपन है कि क्लोज है। सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिटेल में डिस्कस जरूर करना चाहिए। व्हाट इज द ट्रीटमेंट? पहली ट्रीटमेंट आप क्या करते हैं? आईओपी कंट्रोल करने का क्या तरीका है? 40 का प्रेशर कैसे कंट्रोल करना चाहिए? उसकी क्या प्रिकॉशंस हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं? कितना देना होता है? 250 मिलीग्राम अगर देना है, आपने किस स्पीड से देना है? बॉटल में आता है, कितनी स्ट्रेंथ होती है उसकी? 20% मैनीटॉल आप कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेट। लेट से आपने 500 ml देनी है, तो क्या इंस्ट्रक्शन देंगे नर्सिंग को, किस स्पीड से देंगे? 60 ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, ये फास्ट बोलस डोज में जाएगा तो आई को डिहाइड्रेट करेगा। आप इसको 10-20 ड्रॉप पर मिनट पे डाल देंगे तो ये कोई काम नहीं करेगा। तो आधे घंटे में 500 ml की ड्रिप खत्म होनी चाहिए, पौने घंटे में 60 ड्रॉप आप एडजस्ट करें। ओके, सो ये तो इनिशियल हो गई। और किस तरीके से इंट्राओकुलर प्रेशर कम किया जा सकता है? ओरल दे सकते हैं, और भी कोई तरीका? टॉपिकल शुरू कर दे, और इंजेक्शन भी अवेलेबल होते हैं। डोर्ज़ोलामाइड का इंजेक्शन भी आप इमरजेंसी में दे सकते हैं। ओके, सो पहले तो आपने इंट्राओकुलर प्रेशर कम किया, अब आपने क्या करना है? कॉज आमतौर पे रेटिनल इस्कीमिया है, सो क्या करेंगे? कॉमनेस्ट कॉज पहले कंसिडर किया करें। व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज? सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन एंड डायबिटीज मेलाइटस, दीज आर द कॉमनेस्ट कॉजेज। तो पेशेंट आता है आपके पास सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन का और न्यूवैस्कुलर ग्लाकोमा है, तो क्या करेंगे? सो फर्स्ट स्टेप इज एंटी वेजेफ, इमीडिएट इफेक्ट। जब आप एंटी वेजेफ लगाएंगे तो अगले दिन न्यू वेसल्स एट द आइरिस आप डिसअपीयर हो जाएंगे, इतना इफेक्टिव। सो अगर आप लेज़र की तरफ चले जाएंगे, दैट विल टेक टाइम, मे बी 1 month, 2 to 4 weeks में जाके इसका इफेक्ट होता है। सो इमीडिएट एंटी वेजेफ इंजेक्शन जब आप न्यू वेस्कुलराइजेशन देखते हैं, न्यू वेस्कुलर ग्लाकोमा, सो यू बाय टाइम। आपके पास अगले 2-4 दिन हफ्ता है, उसमें आप सर्जरी प्लान करें, आप पीआरपी प्लान करें। एकदम से पीआरपी का फ़ायदा भी नहीं होगा और पॉसिबल भी नहीं होगा। ओके, सो आपने पीआरपी की है, कितने शॉट्स लगाए? ओके, आपने 1500 to 2000 लगा दिए। कितनी देर के बाद पेशेंट को दोबारा देखेंगे? 1 वीक के बाद लेज़र का असर हो जाएगा? क्या फ़ायदा होगा 1 हफ्ते के बाद देखने का? कहने का मकसद है लेज़र का इफेक्ट कितनी देर में आता है? लेज़र जो इस्कीमिया कम करता है, इट टेक्स 2 to 4 weeks। ये एंटी वेजेफ है जो अगले दिन काम करना शुरू कर, 4-5 दिन के बाद इसका मैक्सिमम इफेक्ट आ जाता है। लेज़र का टाइम लगता है। सो यू असेस द पेशेंट रेटिना देखते हैं आप 3-4 वीक्स के बाद,
अब आपने देखा, आपने पीआरपी की थी, 2000 बंद लगाए हैं, लेकिन न्यू वेस्कुलराइजेशन अभी भी है, क्या करेंगे? सर अगर रिकॉर्ड सेशन करेंगे इसमें 5000 तक के शॉट्स हम लगाते हैं डिवाइडेड सेशंस में 3 to 4. Okay, so you give extra shots, fill in the gaps. जो आपने पहले शॉट्स लगाए हैं उसके दरमियान में और लगाएंगे. फर्ज करें आपने 5000 लगा लिए और अभी भी न्यू वेस्कुलराइजेशन है, तो क्या करेंगे? सो इसमें फिर फर्दर हम सिंगल बॉडी एब्लेशन की तरफ भी जा सकते हैं. साइक्लोफोटोकोएगुलेशन भी हमारे पास ऑप्शन है. अगर तो आरटी तो उसमें सिलिकॉन ऑयल. देखिए, साइक्लोफोटोकोएगुलेशन से या क्रायोथेरेपी से न्यू वेस्कुलराइजेशन एड्रेस नहीं होगी. दैट विल एड्रेस द इंट्राऑकुलर प्रेशर. जब तक न्यू वेस्कुलराइजेशन है उस वक्त तक आपका हाइपोक्सिया, न्यू वेस्कुलराइजेशन होती रहेगी. इसमें डिफरेंट स्टडीज डिफरेंट ऑप्शंस बताते लेकिन हैं. जब तक आपकी न्यू वेस्कुलराइजेशन है उस वक्त तक आपने पीआरपी करते रहना. अगर न्यू वेसल्स हैं इसका मतलब है हाइपोक्सिया, और उसके लिए आपने एंटी वेजेफ या पीआरपी करना, बस सिंपल. न्यू वेसल्स ख़त्म हो जाए उसके बाद आपके पास अगर ग्लाकोमा कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर क्या ऑप्शन है? इफ़ द आई हैज़ यूजफुल विजन देन यू गो फॉर शंट सर्जरी. या ट्रैप करते हैं या शंट करते हैं. क्या दोनों के प्लस माइनस है? किस में ट्रैप बेहतर है, किस में शंट बेहतर है? कोई प्लस माइनस? एक अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में 2-3 दफ़ा स्टडी आई है, टीवीटी, ट्रेबेकुलेक्टोमी वर्सेस ट्यूब. तो पहले 1 साल के रिजल्ट आए, फिर 2 साल के आए, फिर 5 साल के आए कि ग्लाकोमा में कौन सा बेहतर है, ट्रैप करनी बेहतर है या ये शंट करना? राइट. सो जो उनका क्रक्स है वो ये है कि दोनों तकरीबन बराबर ही है, कोई क्लियर कट एडवांटेज नहीं है, दोनों से इंट्राऑकुलर प्रेशर कंट्रोल हो. सो इस तरह के पेशेंट में ट्रैप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है, आप आइरिडेक्टमी करते हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है. सो जब तक कंप्लीट रेजोल्यूशन ना हो जाए उस वक्त तक आप ट्रैप की तरफ नहीं जाते. जो ट्यूब है उसमें आप आइरिडेक्टमी नहीं करते, इसलिए वो आप डाल सकते हैं. बट साइक्लोफोटोकोएगुलेशन के क्या प्लस माइनस, कब करते हैं? सर अगर तो प्रेशर बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है और ब्लाइंड आई है. Okay, so when there is no useful vision, then we resort to cyclodestructive procedures. इसमें प्रॉब्लम क्या है? What is the minus in? कैसे करते हैं? क्या प्रोसीजर है? ट्रांसक्लेरल. कौन सा लेजर करते हैं? डायोड. और डायोड यही है. ओके, सो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? सर इसमें सीधी बॉडी शट डाउन हो सकते हैं तो हाइपोटेनस. गुड. सो अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट, कोई पता नहीं है इंट्राऑकुलर प्रेशर कितना होगा जो आप ट्रीटमेंट करें. इसलिए आप एक क्वाड्रेंट में करते हैं, फिर देखते हैं, फिर दूसरे क्वाड्रेंट में करते हैं, फिर तीसरे में करते हैं. सो कोई पता नहीं है कि फाइनल आईओपी क्या होगा, इसलिए इसको हम आखिरी हरबे के तौर पे रखते हैं. एनी अदर प्रोसीजर? सर एक लास्ट रिजॉर्ट अगर पेनफुल आए, ब्लाइंड आए तो फिर हम रिट्रोवर्बल अल्कोहल इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं. ओके, और कोई ऑप्शन? वीएन खत्म हो गई है, नाउ पेशेंट इज कंसर्न. हाँ, evisceration is the last option. पेशेंट पेनफुल ब्लाइंड आई में आपके पास रेट्रोबल्बर, क्या व्हाट प्रॉब्लम क्या होती है रेट्रोबल्बर अल्कोहल इंजेक्शन में? हाँ जी, पेशेंट को हम बताते हैं जी आपकी आंख ऐसे ही रेड रहेगी, पानी आता रहेगा, सारे मसले रहेंगे, सिर्फ दर्द ख़त्म हो जाए और कई दफ़ा टोसिस हो जाए. सो कॉस्मेटिकली इतना एक्सेप्टेबल नहीं हो. ओल्ड एज में अगर पेशेंट आता है कहता है जी मैं सिर्फ दर्द ठीक कराना है तो हम अल्कोहल इंजेक्शन दें. लेकिन अगर यंग पेशेंट है, कॉस्मेटिक अपीयरेंस कंसर्न है, तो फिर हम क्या करते हैं?
ई विजिलेशन, ठीक है। सो कहने का मकसद है कि ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन में कवर होनी चाहिए। व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, व्हाट इज द ट्रीटमेंट, राइट। और एम एस साहब से बात हुई थी थर्सडे वाले दिन, नीचे ओपीडी में ज़रा प्रॉब्लम होती है, तो 8:45 पे यू शुड बी इन ओपीडी, लास्ट 1 मिनट सर।